Okay. The question is saying find the equation of circle through these 3 points. We have to find the equation of circle, and these are the 3 points which are given to me. Okay. And there is no center. As there is no center given to us, it means these 3 points are basically on the circumference. Okay. These 3 points which are given over here are basically on the circumference. So what we are going to do over here now, no radius is given to me, no center coordinate is given to me. So when this kind of thing is happening, those things are not given to us, then we are going the formula, which is the general formula, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the formula which will be used over here. Secondly, as I have told you, there is no center coordinate, there is no radius. So the coordinates which are given to me will be x1, y1, x2, y2, and x3, y3. Okay, these will be the coordinates which I am going to use over here in my question. Okay, so first of all, starting with the first coordinate which is given to me for what is my first coordinate 2 comma 2. So for 2 comma 2, what will I do? In place of x, y, I will plot the value, and g, a, f and c will remain as it is. So 2 square plus 2 square plus 2g into, in place of x again 2f again 2 plus c equals to 0. Okay, simplifying, so 2 square will become like this 2 square, the first one which is given to me over here, this will become 4 is 2 square will become 4 plus second 2 square will again become 4. Then this one which is over here 2gx will become 4g. Then 2f2 will become 4f plus c equals to 0. So for the simplification, 4g plus 4f plus c equals to 0. So sorry, not equals to 0, because 4 plus 4 will be 8. So when I will shift it over here, it will become minus 8. Okay, it will become minus 8. This will be my equation number 1. Okay, 4g plus 4f plus c equals to minus 8. This will be my first equation, which I have got when I have plotted the value of 2 comma 2 in the. Now the second equation. Now what I'm going to do, the second coordinate is 7 comma 2. I will take that coordinate over here, and I will do the same working with 7 comma 2 over here.
So for the coordinate of 7, 2, we are going to have x square will be 7 square, y square will be 2 square plus 2g of the formula into x. So in place of x, I'm going to put 7 again. 2f y in place of y again, I'm going to put plus c equals to 0. Okay. So 7 square is 49 plus 2 square is 4 plus 2 into 7. This will become 14g plus 2 to the 4f plus c equals to 0. So 14g plus 4f plus c equals to 49 plus 4 is there. Okay. This 49 and this 4 will become 53. So I'm shifting it on the other side. It will become minus 53. Okay. So I have got my second equation in terms of G, F, and C. This is going to be my equation 2, right? This is going to be my equation number 2. Now, what will I do? Again, the same. Now, I'm going to do the same working for this one, minus 2, comma 8. For minus 2, comma 8, plotting all the values in this equation over here. So x square means minus 2 whole square. Then y square of the formula. So y square means 8 square of the formula plus 2g. Just as it is given in the question, I have written 2g. In place of x, I am going to put minus 2. Then it is 2fy. So 2f, and in place of y, I am going to put 8 plus c equals to 0. So minus 2 whole square will be 4. 8 square will be 64 minus 2 into minus 2 will become minus 4g plus 16f plus c equals to 0. Okay. So on simplification, it will become minus 4g plus 16f plus c equals to minus 68, right? This will be the working which I have got over here. See, this is going to be my equation number 3. Okay, guys, all the 3 equations are in front of you, as you can see over here on board. Now, as you can see, I have got equation 1, equation 2, and equation 3. So now what I'm going to do over here, first of all, out of these 3, I will select a pair.
फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर वन, टू एंड थ्री, आई विल सेलेक्ट अ पेयर. अब वो पेयर इक्वेशन वन और टू का हो सकता है, इक्वेशन टू और थ्री का हो सकता है, इक्वेशन वन और थ्री का हो सकता है. कोई भी एक पेयर मुझे लेना होगा, ये मेरी मर्जी है. ठीक है. फर्स्ट करें, मैंने इक्वेशन नंबर वन और टू ले लिया, और वन और टू इक्वेशन का जो मैंने पेयर बनाया, जो मैं उसको लेकर बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, इक्वेशन वन और टू को उठा के, तो मैं वहां से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगा. जी को एलिमिनेट कर दें, एफ को कर दें, या सी को कर दें, आपकी मर्जी है. बट मेरी चॉइस, मेरा सजेशन ये है कि सी को एलिमिनेट करें, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखें तो तीनों इक्वेशन में सी के कोऑर्डिनेट्स वन हैं. तो आपको सिंपल प्लस माइनस करके उसको रिमूव करना, और उसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है. तो लेकिन अगेन इट्स योर चॉइस, आप एफ को भी कर सकते हैं, आप जी को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. लेकिन एक बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट, अगर इक्वेशन वन और टू में आपने फर्स्ट करें एफ को एलिमिनेट किया है, तो फिर आप जो दूसरा पेयर बनाएंगे एक और एलिमिनेशन करने के लिए, उसमें भी आपको एफ को ही एलिमिनेट करना होगा. ठीक है. जैसे इक्वेशन वन टू, तो फिर आप इक्वेशन टू और थ्री, या वन और थ्री को लेके दोबारा एफ को एलिमिनेट करेंगे और एक नई इक्वेशन बनाएंगे, फिर आपकी वर्किंग कंप्लीट होगी. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पहले पेयर में आपने अपनी मर्जी से जी को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे पहले पेयर में आपने कहा सर मैं अब तो सी को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ. ये नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. ओके. यू हैव टू बी. ओके. तो नाउ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, आई एम, लेट्स सी, मैं ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. मैं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से अपना काम शुरू करूंगा. ओके. मेरी इक्वेशन नंबर वन, मेरे पास क्या मौजूद है, वो है 4g प्लस 4f प्लस सी इक्वल्स टू -8. ये है मेरी इक्वेशन नंबर वन. ओके. और इक्वेशन नंबर टू मेरे पास थी 14g प्लस 4f प्लस सी इक्वल्स टू -53. ठीक है. ये मेरी दो इक्वेशंस थी, जो कि इस वक्त आपके सामने यहाँ मौजूद है, बेटा लिखी हुई है सबके सामने. ओके. तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, एज आई कैन सी कि यहाँ पे सी को के जो है वो है कोफिशिएंट्स है, वो सेम है, दोनों में वन वन मौजूद है. तो मैं इसको कर रहा हूँ माइनस. ठीक है. दोनों सी को एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा. और माइनस करने का मतलब क्या होगा कि नीचे किसी एक इक्वेशंस की सारी साइंस चेंज हो जाएंगी. मैं नीचे वाले की सारी साइन चेंज कर दे रहा हूँ. माइनस, 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 प्लस. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे कर दिया. सब्ट्रैक्शन हो रही थी, और सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई एक इक्वेशन जो है वो आपकी, उसकी साइंस चेंज हो जाएंगी. सही है. तो राइट. तो
अब आपके पास क्या सिलसिला होगा, 4 - 14 g आपके पास बन जाएगा -10 g। ठीक है, यहाँ पे 4f - 4f ये हो गया कैंसिल, बाई लैक है। मैं सी को कैंसिल करने वाला था, लेकिन यहाँ पे आपका एफ भी कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और प्लस सी माइनस सी भी कैंसिल हो गया, और +53 - 8 विल बी 45। ठीक है, ये मेरे पास पहली वर्किंग आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, जी जो है वो -10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -10 g से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ख्याल रखना। तो नीचे जाके -10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, जी जो है वो 45 से जी के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू बी -9/2। ठीक है, ये मैं कैंसिल करूंगा। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास जो जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -9/2। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर वैल्यू ऑफ जी, राइट। अच्छा, अब हम, मैंने एक दफा किसको ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लिया। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 3 को ले लूं, या इक्वेशन 2 और 3 को ले लूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को ले लूं, या इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ले लूं, इट्स माय चॉइस हाउ आई वांट टू सॉल्व दिस वन। ओके, तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कौन सी लीजिए भाई, चलें, हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 को लूंगा तो 2 पे क्या है, 2 पे है 14 g +4f +c equals to -53। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद है 4g, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, -4g, देन 16f +c equals to -68। ठीक है, तो अगेन हम जो सिलसिला करेंगे वो किसका होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स आप अगेन देख सकते हो कि सी के कोफिशिएंट 1 1 है। तो मैं सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को मैं कर दूंगा माइनस। ठीक है, यानी मैंने यहाँ किया सब्ट्रैक्शन। तो किसी एक इक्वेशन की साइन बदल दे, मैंने आपको पहले भी कहा था, इट्स योर चॉइस विच वन यू वांट टू चेंज। तो मैं नीचे ही बदल रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस, राइट। तो जब ये हो जाएगा आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप देखें, 14g + 4g। ओके, 14g + 4g विल बिकम 18g। आफ्टर दैट 4f - 16f, 4f - 16f will become -12f, और ये जो प्लस सी माइनस सी है ये हो जाएंगे कैंसिल। सही है, इक्वल्स टू, इसी तरह -53 + 68 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे रह जाएगा 15। सही है, तो ये मेरी चीज बन गई है यहाँ पे। आफ्टर दैट 18g - 12f = 15, ये मेरे पास मेरा रिजल्ट आ रहा है।
तो अब मैं जी की वैल्यू पहले ही निकाल चुका था, विच वॉज 99/2। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लॉट वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस साइन आपको नजर आ रहा था, इसकी बेसिकली कोई वो नहीं थी। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन लगाया था। इसका इस नीचे वाली इक्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, कीप इट इन योर माइंड। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू जी की जगह आ जाएगा -9/2। अच्छा, मैं -15 को यहाँ ले आ रहा हूँ, और मैं 12 -12 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, यानी ये बन जाएगा 12। सही है। लेट्स डू द कैंसिलेशन। टू वन ज़ा, टू नाइन ज़ा, -81 -15 इक्वल्स टू 12f। सही है, ये मेरे पास इस वक्त रिजल्ट आ रहा है। ओके, -81 -15 इक्वल्स टू 12f। ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -81 और -15 हो जाएगा -96 इक्वल्स टू 12f। और f की वैल्यू निकालने के लिए -96 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू f। ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 12 × 12 -96, ये हो जाएगा f इक्वल्स टू माइनस का 8। 8 के टेबल में 8 × 12, सॉरी 12 के टेबल में 12 × 8 पे आता है 96। तो f की वैल्यू हो जाएगी -96। ये आपकी f की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने f भी निकाल लिया है, सॉरी, आपने ये g निकाल लिया है और ये आपने f निकाल लिया है। अब इसको इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं पे भी रख दो, तुम्हारी मर्जी है। और आप अपनी c की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए अभी तक। तो नाउ लेट्स सी कि हम अपनी वैल्यू कहाँ रखते हैं। मैं इसको सोच रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में रखूँ या इक्वेशन 2 में रखूँ या इक्वेशन 3 में रखूँ। मैं किसी में भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि यार लेट्स पुट इट, कहाँ पे रखूँ। पुट वैल्यू ऑफ जी, पुट वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर, मुझे लग रहा है, चलो मैं 3 यूज कर लेता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 3 के अंदर जो है मैं सारी वैल्यूज प्लॉट करूंगा। तो क्या हो जाएगा सिलसिला मेरे पास, -4, जी की जगह आ जाएगा -9/2, +16, एफ की जगह आ जाएगा -8, +c इक्वल्स टू -68। ठीक है, ये मेरे पास अब तक सारी चीजें बन रही हैं कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 में सारी चीजें प्लॉट कर दी हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर सिंपल सिंपल सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। सही है। ये तो पहला वाले इसकी हो गई कि मैंने इन दोनों में जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उसको कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस वक्त जो चीज मेरे पास बन रही है, ये -2, दिस -2 will be multiplied by -9. So when I will multiply it, I will have minus minus plus, and 2 9s are 18 minus. Okay, 16 into 8 will be 128,
plus c equals to minus 68, राइट? सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मैं 18 माइनस 128 करूंगा तो मेरे पास बचेगा -110 प्लस सी इक्वल्स टू -68। ओके, तो सी इक्वल्स टू -68, -110 जब उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा +110। ओके, तो जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू जो इस वक्त आ रही है वो आ रही है 42। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 42। ओके, तो मेरे पास जी भी आ गया, एफ भी आ गया, और मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई। सही है। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के मैं जी, एफ और सी की वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, ताकि मुझे मेरी इक्वेशन मिल जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जो कि मेरा असल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2, जी नहीं लिखूंगा बल्कि जी की जगह पे उसकी वैल्यू -9/2 लिख दिया, इंटू एक्स। अच्छा, अब मैं कोई भी एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जी, एफ और सी की वैल्यू मिल गई है। तो अब मैं कोई और वैल्यू प्लॉट नहीं करूंगा। एफ की वैल्यू हो गई -8 इंटू वाई, प्लस सी की जगह आ गया 42 इक्वल्स टू 0। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9x -16y, राइट, प्लस 42 equals to 0, and this is going to be my final equation which is required, the equation of circle when three coordinates on the circumference is given. This will be my final answer.